Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to describe you replication of retrovirus. It is very important topic regarding this chapter, that is human health and diseases for class 12. Sometimes it may be asked as infectious cycle of HIV. Many heading regarding this topic I have also introduced you during the live classes. So be silent for few minutes in order to understand the basic concept that how do viruses, which type of virus, retrovirus or HIV virus, introduced in the human body and infect to the special cell that is known as macrophage cells and able to form its own copy and further infect to other person. Listen carefully. Actually, the diagram in previous video lecture, in previous YouTube video lecture, I have described you the basic structure of HIV. That is, very circular structure having glycoproteinous spike and single stranded RNA along with the reverse transcriptase enzyme. So what about the common structure? The glycoproteinous spike. It is not GPS, it is glycoproteinous spike. Spike means क्या होता है? खूंटी, ठीक है? And the basic function of spike, glycoproteinous spike of HIV. This is the HIV, human immunodeficiency virus. Basic structure of HIV is to attach over the macrophage cell in order to deliver the genetic material, that is RNA. Listen carefully. The genetic material of HIV is single-stranded RNA. Our genetic material is double-stranded DNA. इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब हुआ कि HIV का जेनेटिक मटेरियल RNA और हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA. कोई मतलब नहीं है, मतलब HIV क्या हमारे बॉडी में रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. कोविड-19 का जो जेनेटिक जो वायरस है, पैथोजन है कोरोना, उसका भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वो भी हमारे बॉडी में आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. लेकिन उनके पीछे उनका एक मैकेनिज्म है जो उनको हेल्प करता है. तो HIV के पीछे कौन सा मैकेनिज्म है, वीडियो में आप लास्ट तक अच्छे से बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से सेल्फ नोट बना सके इसके लिए, ठीक है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA is not exact genetic material as like the human being that have the genetic material double stranded DNA. Very special kinds of enzyme known as reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase CR, reverse transcriptase enzyme. This help to bring very specific phenomenon in biology that also happened in HIV and help to convert the single stranded RNA into double stranded DNA, so that the genetic material of HIV become double stranded as like the human DNA. Listen carefully, ध्यान सुने. एक छोटा सा पहले मैकेनिज्म बता दें जो इस लेसन से तो नहीं, एक चैप्टर 5 से है, लेकिन इस लेसन में काफी इंपॉर्टेंट करेगा, इस टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. पहले समझ लो. देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA. DNA का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हमारे बॉडी को बढ़ाना, रिपेयर करना, हार्मोन, एंजाइम ये सब बनाने का काम DNA के अंदर छोटे छोटे जीन्स करते हैं. तो डायरेक्ट DNA प्रोटीन नहीं बना सकता. पहली चीज, DNA किसी पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में तो जाता है, लेकिन बॉडी रिपेयर का इंफॉर्मेशन वो mRNA के रूप में अपने आप को पहले mRNA में कन्वर्ट करता है. DNA हमारे बॉडी में क्या करता है, पहले अपने आप को mRNA में कन्वर्ट करता है और mRNA पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, ग्रोथ को, हार्मोन्स प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोडक्शन एक्सेट्रा. होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो DNA है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में एक वेरी स्पेशल फिनोमिनन होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA दिख रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट हो जाता है. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कौन से टाइप का, आगे पढ़ेंगे, 3 तरह का RNA होता है, tRNA, mRNA, rRNA. ये सब इसी क्लास के चैप्टर 5 में पढ़ना है. तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और ये RNA क्या बनाता है? ये RNA प्रोटीन बनाता है. तो RNA से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को
बोलते हैं ट्रांसलेशन, बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तब जाके हमारी बॉडी बन पाती है। पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आरएनए से उल्टा प्रोटीन बने, यहां पे देखो आरएनए से उल्टा नहीं, आरएनए से उल्टा डीएनए बने, प्रोटीन आरएनए से तो बनता ही है, आरएनए से अगर उल्टा डीएनए बने, देखो डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अच्छा कमेंट्स आया है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, डीएनए से आरएनए, ठीक है। उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, किसके लिए, डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस में। और आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, या सीधे सीधे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक। तो ये बातें मैं हटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। लिसन, तो होता क्या है कि एचआईवी जब किसी वे से लिक्विड फ्लूइड बॉडी के अंदर जो भी होता है उसको ह्यूमर बोलते हैं। WBC का कोई कंपोनेंट्स अगर हमारे किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में आता है तो एचआईवी का वायरस बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है। कैसे इंटर करता है, ये लाइव क्लास में बताया था, इन्फेक्टियस नीडल से, रेजर से, अनसेफ सेक्सेस से, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सब सारी चीजें, अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप से। तो ये क्या होता है, एचआईवी का वायरस बॉडी में आता है तो अपने टारगेट सेल को ढूंढता है। जैसे मैंने बताया कि कोरोना का वायरस सभी टारगेट सेल्स को नहीं इन्फेक्ट कर सकता, सिर्फ उसका टारगेट सेल्स लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। एचआईवी का जो टारगेट सेल है वो कहां होता है, वो मैक्रोफेज सेल है। आपको 11th में बताया गया था WBC के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, ठीक है, ये सब WBC की अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो WBC का एक कंपोनेंट है मैक्रोफेज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैक्रोफेज। तो यहां पर मैं मैक्रोफेज सेल बना दे रहा हूं। ये क्या है आपका, मैक्रोफेज सेल है, और सेल है तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूक्लियस होगा। ये ह्यूमन है, ह्यूमन का मैक्रोफेज सेल है। क्या है ये, मैक्रोफेज सेल, अ पार्ट ऑफ WBC, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, पैथोजेंस को ट्रैप करता है और किल कर देता है, पैथोजेंस को सीधे सीधे खा जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये नॉर्मल सा सेल है, आरबीसी तो है नहीं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, WBC न्यूक्लियस होता ही है। तो इसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। इसके न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए। और ये क्या है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए, ये आपको जानना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डीएनए, ये तो हमारे बॉडी का सभी सेल्स की खास बात है, जरूरी नहीं कि मैक्रोफेज है, ठीक है। एनिमल सेल की ये खास बात होती है। होता क्या है, एचआईवी का वायरस बॉडी में आता है, ब्लड में आता है, तो मैक्रोफेज को खोजते खोजते मैक्रोफेज के सरफेस पे जाके चिपक जाता है। ये इसका स्पाइक है और स्पाइक के हेल्प से ये चिपक गया अच्छे से। तो इसको लिखेंगे अटैचमेंट ऑफ एचआईवी वायरस ओवर मैक्रोफेज सेल। क्या हो जाएगा, अटैचमेंट ऑफ एचआईवी ओवर मैक्रोफेज, एचआईवी, अटैचमेंट ऑफ एचआईवी ओवर मैक्रोफेज सेल। फेज मीन्स खाने वाला होता है, PHAGE, अटैचमेंट ऑफ एचआईवी ओवर मैक्रोफेज। पहला स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप लिखिएगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, एचआईवी मैक्रोफेज सेल पे चिपक गया। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दोनों साइटोप्लाज्म में किसके मैक्रोफेज के रिलीज कर देता है. सो सेकेंड स्टेप, द जेनेटिक मटेरियल RNA and reverse transcriptase enzyme is released out by the HIV into cytoplasm of macrophage cells or host cell. Keep in mind. Listen. Reverse transcriptase enzyme and single-stranded RNA is released out by HIV into the cytoplasm of macrophage cells. Listen carefully. Then what happened? Listen carefully. RNA, that is the genetic material, is not exactly matched with the human DNA. The genetic material of human being is double-stranded DNA and genetic material of HIV is single-stranded RNA. यहीं पे बात गड़बड़ा जाती है. लेकिन वो RNA के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिलीज कर देता है. दैट इज की पॉइंट फॉर HIV वायरस. HIV रिलीज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज वेल एज द RNA. दोनों काम करता है. ठीक है. तो यहां पे होगा क्या कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में बदलना चाहता है क्योंकि उसका काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. देन यहां थोड़ा सा सेल की मैं बाहर वाली चीजें दिखा रहा हूं. हालांकि सेल के अंदर ही होता है लेकिन मैं यहां सेल के बाहर दिखा दे रहा हूं. ठीक है. तुम चाहो तो अंदर दिखा सकते हो. ठीक. व्हाट हैपेंड, द सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसका वायरस का HIV, सिंगल स्टैंडर्ड RNA with the help of reverse transcriptase enzyme RT of virus. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी RNA HIV का है, RNA भी HIV का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी. सिंगल स्टैंडर्ड RNA now convert into the double stranded DNA. Listen, double stranded, but the double stranded DNA is viral DNA. This one is the viral DNA. This one is the viral DNA. Listen carefully. Viral DNA. ये कहां हो रहा है? अभी भी ये साइटोप्लाज्म में यहां हो रहा है. It means finally a viral DNA, double stranded viral DNA is created into the cytoplasm of macrophage that now insert into nucleus. क्योंकि जो ह्यूमन DNA है डबल स्टैंडर्ड वो न्यूक्लियस में है और वायरस का DNA अभी साइटोप्लाज्म में. तो वो डबल स्टैंडर्ड DNA अब अंदर जाएगा. कहां पे? डबल स्टैंडर्ड DNA ह्यूमन के जैसा बना तो लिया है लेकिन अभी वो उस DNA से दूर है जहां पे उसको जाना है. तो ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा डबल स्टैंडर्ड DNA ह्यूमन बीइंग के न्यूक्लियस में. ठीक है. तो अगले स्टेज में आप लिख लेंगे पहला स्टेज अटैचमेंट ऑफ HIV और मैक्रोफेज सेल. दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज. ये दूसरा स्टेज होगा. तीसरा स्टेज क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA बाय वायरस RNA थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ये थर्ड स्टेप होगा. इसको वर्ड में लिख लीजिएगा. फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA इनटू formation of double stranded DNA into the macrophage cell of host by viral reverse transcriptase enzyme. अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप ये हो जाएगा. इसको आप लिख लेंगे कॉपी में. इंसर्शन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA into host nucleus through integrase enzyme. Through integrase enzyme. Integrase enzyme. Through integrase enzyme, the double stranded DNA insert and cross the nuclear membrane and reach to the nucleus of host. Nucleus of host means nucleus of human being. Keep in mind. अब इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं और फिर से अब अंदर क्या हो रहा है उसको मैं उस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं. host nucleus, host cytoplasm and overall macrophage cells. Listen carefully. This one is the viral DNA. Viral DNA. And this is the host DNA. Host DNA. It means before conversion, before reverse transcription, the viral genetic material was RNA, single stranded RNA, and host genetic material was DNA. It means both are unmatched. In order to
incorporate the viral DNA in order to incorporate the virus genetic material into host genetic material, both need to equalize each other. Keep in mind, both need to convert each other as like either DNA or RNA. ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वायरस का डीएनए आ गया और होस्ट का डीएनए ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग का डीएनए दोनों पड़ा हुआ है। यहाँ पे अब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें डीएनए किसी भी दूसरे डीएनए के साथ वो रेप्लिकेशन कर देता है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस चैप्टर 5 में समझाया जाएगा। तो ये दोनों रेप्लिकेट करके क्या करेगा, पूरा का पूरा हमारा जो डीएनए है उसको कब्जा कर लेगा, मतलब पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लेगा। सो द वायरल डीएनए incorporate with host DNA। मतलब क्या है कि वायरस का डीएनए पूरी तरह से होस्ट के डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेगा। पहले होस्ट का डीएनए क्या करता था, होस्ट का डीएनए मैक्रोफेज दूसरे किसी मैक्रोफेज सेल को बनाता था, ठीक है। होस्ट के डीएनए में ये इंफॉर्मेशन था कि वो दूसरा मैक्रोफेज सेल रिपेयर करता बनाता, बट जब वायरस का डीएनए उसके अंदर आ गया तो ये पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, इसी के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। तो पहले तो ढेर सारा डीएनए बनाएगा, ढेर सारा डीएनए की कॉपी बनाएगा, ढेर सारा आरएनए बनाएगा। पहले डीएनए, उसके बाद ढेर सारा आरएनए की कॉपी। उसके बाद जब मैक्रोफेज को बनाना सोचेगा, मतलब सेल में सेल डिवीजन की कैपेसिटी इसलिए आती है क्योंकि उसके डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है सभी तरह के सेलुलर ऑर्गेनेल्स को बनाने का। ऐसे ही मैक्रोफेज सेल डिवाइड कर सकता है, दूसरा सेल बना सकता है, लेकिन अब उसका जेनेटिक मटेरियल जहां पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है वो दूसरे वायरस ने हाईजैक कर लिया है। वायरस क्या करता है कि होस्ट के डीएनए को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और बोलता क्या है कि अब मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। तो ये होस्ट का डीएनए क्या करता है, होस्ट का डीएनए अब मैक्रोफेज सेल ना बना करके लगता है क्या बनाने, वायरस यानी कि एचआईवी को लगता है जनरेट करने, कॉपी बनाने। सो आफ्टर सम टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस होता है कि पहले होस्ट का डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर जो प्रोटीन बनाता है उससे वायरस रिपेयर होते हैं। सो होस्ट डीएनए फॉर्म एमआरएनए एंड एमआरएनए फॉर्म वायरस कॉपी। सो वेयर डू द वायरस कॉपी फॉर्म इन मैक्रोफेज सेल्स। सो आफ्टर सम टाइम मैनी वायरसेस, कीप इन माइंड, listen carefully, many viruses copies are formed after some time. Here I have drawn few of them. These are the different copies of viruses. Listen carefully. After some time, within few minutes to few days, the virus form. There are so many viruses formed inside the macrophage cells. Listen carefully. After some time, there are few, that is many copies of viruses formed in the macrophage cytoplasm. In the cytoplasm of macrophage. In the cytoplasm of macrophage. In the cytoplasm of macrophage, many virus copies are formed. That's why macrophage called factory of HIV formation. ये क्वेश्चन पूछता है, why do macrophage called factory of HIV formation? That's why the macrophage called factory of HIV formation. Listen. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेल डैमेज नहीं करता है, मैक्रोफेज सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसमें बनाता है अपनी कॉपी। इट मीन्स the macrophage cell remain as usual. It means without harming the macrophage cell, HIV form its many copies and released out into the blood stream. blood की स्ट्रीम में, ब्लड में ये रिलीज कर देता सभी HIV को। अब बॉडी में कहां से प्रॉब्लम आती है, लिसन। अब ये क्या करता है, HIV तो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है लेकिन दूसरे के कंट्रोल में हो गया। जब वो दूसरे
ये मैक्रोफेज सेल अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरे के कंट्रोल में आ गया, अभी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी ये फैक्ट्री बनाने का काम कर रहा है, HIV बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये HIV यहां से निकल के, ये HIV जितने भी हैं वो वहां से निकल के दूसरे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले सेल, जिसको कहते हैं हेल्पर टी सेल, उसको नुकसान पहुंचाता है। मींस आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम मैक्रोफेज, ये एमपी लिख दिया तो आप मैक्रोफेज समझिए। आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम मैक्रोफेज सेल, HIV अटैक and destroy other helper T cell। हेल्पर टी सेल, देखो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल, ये इसी लेसन में पढ़ाया जाएगा। बी सेल बोन मैरो से बनते हैं और टी सेल थाइमस सेल से बनते हैं। ये दोनों इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इनहेंस करते हैं। तो मैक्रोफेज से निकलने के बाद HIV किसको इन्फेक्ट करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी सेल से। कौन से हेल्पर टी सेल को, लिख लो कॉपी में, TH एंड T4 लिम्फोसाइट सेल्स। दो तरह के लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी दो तरह का होता है, TH और T4, दोनों को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। फिर क्या होता है, एड्स का पेशेंट धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाता है और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। दैट इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ HIV लाइफ साइकिल। फिर से एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटैचमेंट ऑफ HIV ओवर द मैक्रोफेज सेल्स, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप्स, रिलीज ऑफ viral RNA and reverse transcriptase into macrophage cytoplasm by the HIV virus. Third step, conversion of RNA into DNA by the reverse transcription of viral genetic material. Third step, insertion of virus DNA into host DNA, into host nucleus. Fourth step, the genetic material of host DNA is incorporated with the host incorporated with the viral DNA. Fourth step, next step जो भी है, next step उसमें क्या होगा, replication. नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा उसको लिख लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ मैनी कॉपीज ऑफ HIV into the macrophage cell. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, the HIV later infect to the helper T cell, that is TH and T4 lymphocyte, in order to reduce the overall immune system and overall immunity of the HIV patient. That is the overall life cycle or replication cycle of HIV. Thank you.